Next video on polynomial, it is a remainder theorem, exercise 2.3. The statement of remainder theorems: when p of x is divided by x minus a, p x कोई polynomial, the remainder is p of a. In other words, when a polynomial is divided by another polynomial x minus a, the remainder is p of a. Where p of x is a polynomial degree greater than equal to 1 and a is any real numbers. px को polynomial x minus a से डिवाइड किया, ये क्वोशंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया. दो केसेस आएंगे, either remainder is 0 or remainder is not equal to 0, as it is a polynomial of degree 1. अगर डिग्री 1 है तो रिमाइंडर 2 ही आएंगे. If remainder is 0, p of x आपको पता ही है, रिमाइंडर मैंने 0 ले लिया, p of देख लीजिए 0 आ जाएगा. If remainder is 0, p of a is 0, ये बात ध्यान में रख लेनी है. तो this implies x minus a is a factor of px, or x minus a is a multiple of px. ये बात आपको ध्यान में रखनी, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स होती है. इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने रिमाइंडर्स को रख लिया. फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू a पुट करी, ये 0 हो गया, तो ये रिमाइंडर आ गया. सिंस द रिमाइंडर इज p of a, when p of x is divided by x minus a, मतलब इनमें लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं है. पॉलिनोमियल्स में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आप रिमाइंडर्स निकाल सकते हैं. लेट मी टेक योर क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.3. Find the remainder when p of x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by, first part है x plus 1. सॉल्यूशन देख लीजिए. p of minus 1, because let x plus 1 0, x is equal to minus 1. ये थ्योरम लगाएंगे. अगर जो आपका rx 0 नहीं है तो p of a रिमाइंडर होगा. किससे डिवाइड करेंगे? x माइनस a से. तो ये आएगा माइनस 1 का क्यूब, 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 1, minus 1 plus 3 minus 3 plus 1 is equal to 0. This implies a remainder is equal to 0. इसी का अगला पार्ट है x minus 1 by 2 equal to. स्टेटमेंट है when p this is divided by x minus 1 by 2, then remainder will be equal to p of 1 by 2. 1 by 2 cube, 3 into 1 by 2 square, 1 by 8, 3 by 4, 3 by 2 plus 1, 1 plus 6
plus 12 plus 8 upon 8. Answer is 27 by 8. So this will be the remainder. Third part है when divided by x. x है तो खाली p आप 0 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा. Therefore, remainder is 1. ये स्टेटमेंट बन गई px is divided by x. ये बात ध्यान में रखिए. अगला कैसा स्टेटमेंट इज डिवाइडेड px is ये थर्ड पार्ट है. फोर्थ पार्ट px is divided by x plus 5. तो p ऑफ माइनस 5 निकालना. यही आपका रिमाइंडर आ जाएगा. कोई वैल्यू आप पाई लेने की जरूरत नहीं. अगले केस में when divided by फिफ्थ केस है when p of x is divided by 5 plus 2x is equal to 0. X will be equal to minus 5 by 2. तो p of minus 5 by 2 आप निकालेंगे. minus 5 by 2 का होल क्यूब यहां पुट करेंगे. 3 इंटू minus 5 by 2 का होल स्क्वायर minus 125 by 8 plus 75 by 4 minus 15 by 2 plus 1. Here the answer will be calculate कर लेना minus 27 by 8. So this is all about all the questions. अब फर्स्ट क्वेश्चंस खाली रिमाइंडर्स निकालना. क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस a. पॉलिनोमियल सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूं. p of x is given to be x cube minus ax square तो px is divided by x minus a. तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? p of a आंसर विल बी इक्वल टू 5. तो रिमाइंडर 5 है आ जाएगा. थर्ड क्वेश्चन है चेक वेदर x 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. तो लेट p of x तो आप यही ले लेंगे. 7 plus 3x को 0 पुट कर लीजिए. x will be equal to minus 7 by 3. तो p of minus 7 by 3 निकालिए. तो minus 3 into minus 7 by 3 का होल क्यूब प्लस 7 by 3 into 7. This is 9. This is minus 343 minus 1 by 3, which is not equal to 0. This implies 7 plus 3x is not
ए फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर 0 हो जाता तो फैक्टर हो जाता। ऐसे ही आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 है, सेम एक्सरसाइज में, चेक वेदर द पॉलिनोमियल q of t is equal to 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। अब मैंने यहाँ लिख दिया है कि अगर ये फैक्टर या मल्टीपल है तो तरीका तो वही रहता है, 2t plus 1 is equal to 0, t की वैल्यू -1/2। अब क्यों आप t -1/2 निकाल दीजिए। अगर 0 आ जाता है is equal to 0, this implies 2t plus 1 is a multiple of q of t। तो ये आपके इस छोटी सी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपने आंसर मल्टीपल में देना है या नहीं। इसलिए मैंने थ्योरी लिखते हुए आपको तीनों बातें लिख दी कि मल्टीपल है तब भी यही बात रहेगी, और अगर जो आप पी ऑफ ए 0 आ जाता है तो x माइनस ए को आप फैक्टर भी कहते हैं और x माइनस ए को मल्टीपल भी कहते हैं। मल्टीपल प्रूव करना था, t प्लस 1 को 0, t की वैल्यू 1/2, क्या हुआ -1/2, यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि 1/2 करेंगे तो -4/8, 1/2 का क्यूब 1/8 आएगा, t2 1/4 आएगा, इससे आपका आंसर 0 आ रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल। Rest of the examples simple हैं that I am not taking, but this is little bit different, so I have taken. But एक क्वेश्चन जिसमें आपकी बुक में और भी दिया हुआ है, let me take that also. Divide the polynomials. Divide के ऊपर इन्होंने बात की है। और पॉलिनोमियल p ऑफ x को मैं लेट कर सकता हूं 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। x माइनस 1 को यहां रखेंगे, 3x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। पॉलिनोमियल px को आपने डिवाइड करना है x माइनस 1 से। फर्स्ट टर्म को पहले फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लीजिए, 3x रेज टू पावर 4 अपॉन x, तो 3x क्यूब आएगा। इसका मतलब पहली टर्म 3x क्यूब आएगी। अब 3x क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें हम साइन चेंज करते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर साइन चेंज करेंगे तो यह माइनस एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब अगले स्टेप में अब माइनस एक्स क्यूब को फिर x से डिवाइड करेंगे, इस टर्म को पहली टर्म से, तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसमें अगली टर्म ये माइनस एक्स स्क्वायर पे जाएगी, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे।
फिर साइन चेंज करेंगे, यहां माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि ऊपर कोई टर्म नहीं है, फिर माइनस 3x लेंगे। तीसरे स्टेप में माइनस एक्स स्क्वायर को फिर पहली टर्म से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन चेंज होंगे, तो ये -4x -1। फोर्थ स्टेप में -4x को फिर x से डिवाइड करेंगे तो -4, तो -4x + 4। इसका मतलब जब आपने इसको इससे इस टाइप से डिवाइड किया तो यहां से जो क्वोशिएंट मिला आपको वो मिला 3x³ -x² -x -1। जो रिमाइंडर मिला वो आपका -5। रिमाइंडर तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे पर क्वोशिएंट नहीं निकाल सकते। This is I have taken example number 2 of exercise 2.3। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1 आप खुद डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आपको किससे डिवाइड करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए 3x² + x -1 को डिवाइड करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए x + 1। पहला स्टेप 3x होगा, सोच लिया करोगे जो मैंने कहा है कि पहली टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके आइडिया लगता है। तो दिस इज 3x² + 3x, सब्ट्रैक्ट कर लो, -2x को x से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, -2x -2 + n + n1। तो क्वोशिएंट यहां से is 3x - 2 and remainder is equal to 1. So with this I have covered your 2 exams of your exercise also. Divide आपको आना चाहिए when a polynomial is divided by another polynomial.